Welcome to DRTSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. नमस्ते, आदाब, हेलो। हम भीष्म पितामह कहते हैं हमारे मेडिसिन में। सो एक भाग्य है, सौभाग्य है। आई एम इन अयप्पा दीक्षा दीक्षा में हूँ। तो और एक बार डॉक्टर अमिताभ बनर्जी को सादर स्वागत, नमस्कार। स्वामी शरणम अयप्पा। नमस्कार जी। So he's the one who has been there, and he is the one who has introduced some wonderful guests like Kushwaji, Dr. Kushwaji, and me and Kushwaji. Whenever we chat, we say whenever he speaks, we just keep listening to him. And believe me, in my spare time, I play his videos, the old time videos, other than my Ayappa devotional songs. Such meticulously, very honestly, prudently, with evidences he tries to bring out the issue. That too, because health is wealth. Health is important. Without health, there is nothing. And not only that, I am in Ayappa Diksha. I am also a doctor. After God, people believe in doctors. They are called as demigods. But these days, doctors are being thrashed, raped, or killed. Innocent doctors are becoming victims to gross corporatization of health. That is very unfortunate. थोड़े लोग इतने स्वार्थ हो गए। ये स्वार्थता जो है, हमारी जो डॉक्टर की पेशा है, वो भगवान के बाद में हमको उतनी सी प्रजा से या आवाम से या लोगों से भक्ति पूर्वक हमको देखते हैं, क्योंकि ये स्वास्थ्य का मामला है। तो ऐसे विषय में थोड़े चंद लोगों की स्वार्थता से आज हमारे अच्छे डॉक्टर्स को पीटा जा रहा है, रेप किया जा रहा है, उनको जान से मार दिया जा रहा है। और इटली में तो डॉक्टर्स की ये हाल है, वहां हॉस्पिटल्स में आर्मी को लाने की बात कर रहे हैं ये लोग। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि क्यों हो रहा है? इसीलिए कि ये लोग जिसको भगवान मानते थे आज तक, और कल भी मानेंगे, लेकिन भगवान के जगह ये स्वार्थता आकर जब पैसे का मामला आया, तो एक डराव एक डराव हो गया, एक डर सा पैदा हो गया। वो डर से, और ये ड्रग्स जो है, जो दवाइयां मार्केट में है, वो बिना टेस्ट किए, ट्रायल किए हुए दवाइयां जो है, ऐसे स्वार्थ डॉक्टर्स कारपोरेट हॉस्पिटल्स में उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। उसका फलस्वरूप, उसके साइड इफेक्ट से पेशेंट जानलेवा हो रही, या उनको बड़ी सी बड़ी सदमा पहुंच रही है। इसी के फलस्वरूप आज ये हमारी पेशा को, डॉक्टर की जो स्वास्थ्य की जो रूपरेखा है, उसके ऊपर विश्वास टूटता जा रहा है। और इसके ऊपर कोविड-19 जैसा एक सवार आ गया, जो शास्त्रीयता ही नहीं, इसके बदौलत भी लोगों में एक आशंका आई है, और इस तरह की भूल हो रही है। बिकॉज मेनी आर गेटिंग किल्ड और बैड नेम, फाउल माउथ, because of few people who have become very selfish, and they are trying to exploit patients, and by doing trials of the medicines, and then thereby the side effects, either killing the patients or incapacitating them for lifelong. For that reason, the noble profession, the health doctors have become a scapegoat or targets. Innocents are being targeted, leaving those fellows who are indulging in this, who are in nexus with those administrators, selfish administrators, again, only few, and selfish politicians. And combined media, how media has highlighted COVID-19 when there was none. Now they have got exposed, exploited. That is why major media people are not believing when it comes to health. In such cases, we are trying to bring out another story wherein 45 to 50% surgeries are unnecessary, with due respects to some wonderful surgeons, anesthetists, critical care specialists, and wonderful hospitals, whether it is government, private, or corporate. There are wonderful doctors. With due respects to all of them, we are there with you. But those who are trying to indulge in such type of
unnecessary surgeries, government is yet to take an action. And after COVID-19, you have seen whole corporate hotels have converted them into hospitals, corporate hospitals. It's a shame. That is why my direct question to Prime Minister Modi, Amit Shah ji, and Central Minister of Tourism, what the hell you are doing? Why don't you try to take away the permissions which you have granted them to run a hotel? And how is that they are converting them into hospitals? Hospital is a non-profitable organization, my dear principal secretaries or secretaries of tourism, whether it is central government or state governments. You have to understand, these are non-profitable, service-oriented health or education. But how is that you are grossly commercializing it? It's a shame. And top of that, insurance companies, pharmacies, together they are exploiting, leading to health, not health, through health, create fear, loot them, and become wealthier. It's a shame. I'll take a forward. After that, I'll show you some video and then the PPT of Amitabh Banerjee ji. Sir, please. नमस्कार जी। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर डॉक्टर टी एस पी चैनल में आने के लिए। और हेल्थ को हमने काफ़ी नेगलेक्ट किया है सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम डॉक्टर जोसेफ भोरे 1946-47 में उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था, बोर्ड कमेटी रिकमेंडेशन। उन्होंने कहा था कि विलेज लेवल में 10,000, 20,000, 30,000 पॉपुलेशन लेवल में 10,000 से लेके 30,000 में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा। वहाँ 6 डॉक्टर रहेंगे, 6, with a medical specialist, surgical specialist, besides a general duty medical officer, a gynecologist। आज के तारीख में एक डॉक्टर भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में रह जाए तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर के ऊपर जो सेकेंडरी लेवल हेल्थ सेंटर होगा, ब्लॉक लेवल में या तालुका लेवल में 650 बेडेड हॉस्पिटल होगा, जहाँ पे आपके सभी डॉक्टर रहेंगे, सब स्पेशलिटी रहेंगे। और डिस्ट्रिक्ट लेवल में 2000 बेड हॉस्पिटल जो कि टर्सरी केयर हॉस्पिटल होगा। तो ये ऐसे होने से हमारे देश में हेल्थ सर्विसेज आम आदमी को मिलता, और ये सब पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के था। कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं था उस टाइम। प्राइवेटाइजेशन में उस टाइम प्राइवेट प्रैक्टिशनर होता था, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर होता था। जितने भी 90%, 95% बीमारियां फैमिली फिजिशियन हैंडल कर लेता था। और एक डॉक्टर पूरा परिवार को ट्रीट करता था, एक डॉक्टर पूरे मोहल्ले को ट्रीट करता था, एक डॉक्टर कई मरीज को ट्रीट करता है। आज उल्टा हो रहा है। आज इतना टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, स्पेशलाइजेशन सब स्पेशलाइजेशन हो गया कि एक मरीज को कई डॉक्टर ट्रीट करते हैं। एक मरीज को एक डॉक्टर नहीं, कई डॉक्टर ट्रीट करते हैं। पहले जमाने में एक डॉक्टर कई मरीज को ट्रीट करता था और उसको एक पूरा इंटीग्रेटेड मालूम होता था, उसका सोशल ये प्रॉब्लम्स मालूम होते थे, हेल्थ प्रॉब्लम्स मालूम होते हैं। आजकल क्या है, एक एक पोर्शन हो गया है, हर चीज़ के लिए एक स्पेशलिस्ट है, एक सुपर स्पेशलिस्ट है। तो वो फ्रैगमेंट हो गया है। जो साइंस भी है, साइंस फ्रैगमेंट हो गया है। आर्ट जो है, आर्ट जो कि एक फैमिली फिजिशियन को होता था कि पूरा पेशेंट को देखे, उसका पेशेंट इन हिज फैमिली, पेशेंट इन हिज कम्युनिटी, पेशेंट इन द जॉब। क्योंकि कई हेल्थ प्रॉब्लम्स इंटरलिंक्ड होते हैं, फैमिली के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं, जॉब के साथ होते हैं, स्ट्रेस होता है, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होते हैं। और ये सब अभी इसकी जगह क्या हो गया, असेंबली लाइन हो गया। पेशेंट जाता है हॉस्पिटल में, एक स्पेशलिस्ट से दूसरा स्पेशलिस्ट, एक इन्वेस्टिगेशन से दूसरा इन्वेस्टिगेशन। तो उसमें क्या होता है कि कई डॉक्टर देखते हैं, कई ये एक प्रकार से जैसे कि आप फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट को डाल दिया है, एक जगह ढक्कन लगा रहा है, एक जगह पानी भर रहा है, एक जगह ये हो रहा है, एक जगह लेबल लग रहा है। तो असेंबली लाइन जैसे जा रहा है वो पेशेंट। वो ऐसा है कि वो ऐसा एक बिजनेस हो गया है, बिग बिजनेस हो गया है। और इसमें क्या होता है, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप पूरा डाइल्यूट हो गया है। खत्म हो गया। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप क्या डाइल्यूट हो गया है, क्योंकि वो कांटेक्ट ही नहीं है एक डॉक्टर के साथ। वो ये खाली उसको मशीन जैसे ट्रीट करता है, जैसे कोई कार का फैक्ट्री हो। ह्यूमन बीइंग मशीन नहीं है। तो उसका जो सोल जो है मेडिसिन से वो चला जा रहा है। और दूसरी बात है, जैसे अभी डॉक्टर रेड्डी ने कहा कि डॉक्टर्स लोग का थोड़ा सा ट्रस्ट चला जा रहा है लोगों को। मैं ये बताऊंगा कि वो बेचारे मजबूर है, पर्टिकुलरली जो जूनियर डॉक्टर्स है, जो मिडिल लेवल डॉक्टर्स है, उनके पास मजबूर है। क्योंकि जितने बड़े बड़े अभी धीरे धीरे 1980s के बाद से फंड क्राइसिस हो गया था, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया था, तो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बैडली नेग्लेक्ट हुआ है। सिंस 70 साल 80 साल हो गए हमारा नेग्लेक्ट हुआ है। और आज के तारीख में क्या है कि
ये धीरे धीरे जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और कमजोर बन गया है ड्यू टू नेग्लेक्ट ऑफ गवर्नमेंट फंडिंग। उसके बाद 1990s में क्या हो गया, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हो गया। तो इकोनॉमिक लिबरेशन से क्या हो गया कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहने लगे, अल्टीमेटली अभी प्राइवेट हो गया है, प्राइवेट पब्लिक हो गया है। तो पब्लिक से प्राइवेट से अभी प्राइवेट का डोमिनेंस ज़्यादा हो गया है। प्राइवेट पार्टनर से, और जितने भी जो कि दो चीज़ है जो कि गवर्नमेंट को देखना चाहिए, एक होता है हेल्थ और एक होता है एजुकेशन। दोनों में गवर्नमेंट ने नेग्लेक्ट किया है। आप देखेंगे एजुकेशन भी सब प्राइवेट सेक्टर में आ गए हैं। मेडिकल एजुकेशन में आज के तारीख में 50% कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस प्राइवेट में है। बहुत ज़्यादा उसको और रन और करने और में पते कॉस्ट की आता है। बात क्या है, पते की मेडिकल एजुकेशन एंड दे डोंट हैव मेडिकल हॉस्पिटल्स, अगेन दे आर डिपेंडिंग ऑन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। पते की बात गवर्नमेंट देखो। हॉस्पिटल। हाँ। सी, मेडिकल अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है प्राइवेट में, मेडिकल कॉलेज के साथ टीचिंग हॉस्पिटल क्यों नहीं है? जो भी प्राइवेट कॉलेजेस है खाली नेम से एक हॉस्पिटल्स है। यहाँ पर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जब पूर्व कहते थे, आज जो है नेशनल मेडिकल काउंसिल बना। ये लोग सो रहे हैं क्या? हेल्थ मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? और यही नहीं सर जी, टूरिज्म वाले भी, टूरिज्म प्रिंसिपल सेक्रेटरी, माई अपील टू यू, हाउ आर यू अलाउइंग देम दिस टाइटल हेल्थ टूरिज्म? व्हाट इज दैट नॉनसेंस गोइंग ऑन? हाउ इज दैट यू आर ये अलाउइंग टूरिज्म बहुत बड़ा टूरिज्म? बिजनेस है। हेल्थ टूरिज्म बहुत टूरिज्म बड़ा बिजनेस है एंड हेल्थ हमारे इज यहाँ नॉट। इस। इसीलिए मैं ये टूरिज्म सेक्रेटरीज को विनम्र पूर्व उनके मैं इनको नमस्कार करते हुए कह रहा हूं, आप इसकी मतलब समझिए। हेल्थ ये जो है नॉन प्रॉफिटेबल सर्विस है। व्हाई आर यू ट्राइंग टू लिंक हेल्थ विथ टूरिज्म? काइंडली अंडरस्टैंड, यू डिसोसिएट, पीपल आर गेटिंग लूटेड, दे आर गेटिंग कमर्शलाइज्ड। दिस इज नॉट इन गुड स्पिरिट ऑफ द वर्ड टूरिज्म। इसीलिए आप जाके, यू आर ऑल एजुकेटेड, so that is the reason why my simple appeal, next time show we are going to blast. That also with figures I will come out if you don't change. Yes, sir ji. नहीं, वो अभी नहीं है डॉक्टर साहब। जब प्राइवेटाइजेशन हो गया है, जितने भी ओनर्स होते हैं कॉर्पोरेट अस्पताल के, वो Yeah. नॉन मेडिकल होते हैं, वो बिग Yeah. बिजनेस वाले होते हैं, पैसे वाले होते हैं। That's और what. डॉक्टर्स आर द एम्प्लॉयर। डॉक्टर्स हैव लॉस्ट देयर ऑटोनॉमी। डॉक्टर्स का आज़ादी चला गया है। जूनियर डॉक्टर्स, मिडिल लेवल डॉक्टर्स को टारगेट दिया जाता है हर अस्पताल में कि इतने इन्वेस्टिगेशन होने, इतने सर्जरीज होने, इतने प्रोसीजर्स होने, नहीं तो उनको निकाल के, उनका जॉब सिक्योरिटी नहीं है तो उनको मजबूरन करना पड़ता है। और क्या है, जब पिटाई होती है तो डॉक्टर की पिटाई होती है, पर एक्चुअल प्रॉब्लम इज एट दी हायर अप, क्योंकि इट इज वो नहीं बिकम दिखता, वो नहीं बिग दिखाई बिजनेस। देगा। He is a corporate giant. He बिग। will not be seen because he is funding political parties. He is close with politicians, administrators, and police officials. That is why I am going to show this video. आपकी बात को आगे लेके जाते हुए, I'm just showing it this video. After that, I have to come back to your PPT because that is going to seal the. Uh, एक सेकेंड। ये डॉक्टर साहब की वीडियो है। आई एम गोइंग टू कम बैक टू दैट वीडियो। अभी डॉक्टर साहब ने जो जिक्र किया है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, दे आर रन बाय नॉन मेडिकल पीपल, and that is the reason why it has become commercialized and doctors are being set targets, and unfortunately doctors, for the sake of livelihood, now see they have increased seats, PG and undergraduate. Where will all these doctors go? And they are investing crores of rupees. It's a shame, whether it is BJP or Congress or local communists or whichever parties. It is a shame. You are forcing people to spend crores of rupees. I cannot educate my children spending so much of money. It is not government anymore, private. And when they spend so much of money, in return, they will expect something. That is where health from service has become into a business. It's a shame. That's why इंडिया का मेडिकल सिस्टम जल्दी I'm going to show this video because अभी डॉक्टर जी ने जो बात बताई, नॉन मेडिकल लोग बिजनेस को, इसको हॉस्पिटल्स को बिजनेस बना दिया है, डॉक्टर्स को टारगेट दे रहे हैं, और जब गलती होती है डॉक्टर्स को पिटाई हो रही है, वहां कोई नहीं दिखाई देगा। इंडिया का मेडिकल सिस्टम जल्दी कोलैप्स होने वाला है। 9 मार्च 2016 को इंडिया की पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये ओपनली एक्सेप्ट किया। सी न्यूज में पब्लिश्ड एक रीसेंट स्टडी के हिसाब से इंडिया में बस गेस करो कितने परसेंटेज सर्जरीज फेक की जाती होगी। वेल, a freaking 44% सर्जरीज
पे की जा रही है। मतलब ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दी सर्जरीज कंप्लीटली अनवांटेड होती है, सिर्फ पैसे कमाने के मकसद से की जा रही है। इसी रिपोर्ट ने इन सर्जरीज को बाइफरकेट करके भी बताया था कि कौन सी सर्जरियां हैं। इंडिया में होने वाले 55% हार्ट सर्जरीज, 48% यूटेरस सर्जरीज, 47% कैंसर सर्जरीज, 48% नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज, 45% सी सेक्शन सर्जरीज कंप्लीटली अननेसेसरीली हो रहे हैं, सिर्फ पैसे ऐंठने के मकसद से। रीजन सिर्फ और सिर्फ एक, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल्स, यानी कि हॉस्पिटल्स को भी कॉर्पोरेट कंपनीज की तरह टारगेट और प्रॉफिट सेंट्रिक बना देना। एक काफी इंटरेस्टिंग रिसर्च पेपर है जिसमें रिसर्चर्स ने महाराष्ट्र के टॉप हॉस्पिटल्स के 43 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, सीनियर गवर्नमेंट एक्स ऑफिशियल्स और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के मैनेजर्स को तक इंटरव्यू किया, ताकि वो इन हॉस्पिटल्स में जो कंपनीज की तरह ही टारगेट बेस्ड स्ट्रक्चर चल रहा है उसे पब्लिकली एक्सपोज कर पाए। एंड द रिजल्ट्स वर शॉकिंग। सो सबसे पहले तो सैलरीज की बात करते हैं। सो रिसर्च में पार्टिसिपेट किए रिस्पोंडेंट्स का यह कहना था कि हॉस्पिटल्स में काम कर रहे डॉक्टर्स की सैलरीज में बहुत ह्यूज डिफरेंस होता है। इतना ज्यादा कि न्यूबी डॉक्टर्स को 1 लाख पर मंथ की सैलरी मिलती है, लेकिन सीनियर डॉक्टर्स को 1 करोड़ पर मंथ तक भी ये सैलरी पहुंच जाती है। अब सवाल यहां पर यह आता है कि इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? क्योंकि डिफरेंस इनके टारगेट्स में भी होता है। एक सीनियर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का यह कहना है कि उन्हें एवरी मंथ 1000 पेशेंट्स को कैसे भी करके हाई एंड ट्रीटमेंट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसी पर एक और गायनाक रिस्पोंडेंट का कहना यह था कि मंथ एंड में टारगेट्स का प्रेशर काफी बढ़ जाता है, जिसके लिए उन्हें कैसे भी करके आउट पेशेंट्स यानी कि ओपीडी पेशेंट्स को भी बिना मतलब के हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ता है, और नतीजा ज्यादा से ज्यादा सर्जरीज रेकमेंड करके टारगेट्स मीट किए जाते हैं, क्योंकि टारगेट ही यहां पर 1000 पेशेंट है। अब आप खुद ही सोचो, हर हॉस्पिटल में, हर डिपार्टमेंट, जैसे ऑप्थेल्मोलॉजी में ही ले लो, उसमें मिनिमम 5 से 6 डॉक्टर्स होते हैं और सबको सिमिलर टारगेट्स दिए जाते हैं। तो जस्ट इमेजिन हॉस्पिटल्स प्रॉफिट एंड आवर लॉस। एंड बाय द वे, दीज टारगेट्स आर टेकन वेरी सीरियसली। उसी रिसर्च में कई सारे सीनियर डॉक्टर्स का यह कहना था कि अगर कोई डॉक्टर अपने टारगेट्स को लगातार 2 महीनों तक मिस करता है तो बिल्कुल कॉर्पोरेट जैसा ही उसको वर्बल वार्निंग मिल जाएगी या फिर एक मेमो दिया जाएगा, और उसके बाद भी अगर टारगेट्स मीट नहीं होते तो ऑफ कोर्स टाटा बाय बाय। सो आप यहां पर देख सकते हो हॉस्पिटल इंडस्ट्री कैसे एक सर्विस इंडस्ट्री होनी चाहिए, जिसमें कस्टमर, पेशेंट टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए, बट यहां पे प्रॉफिट टॉप प्रायोरिटी हो जा रही। और बाय द वे, इन टारगेट्स का ट्रैक भी हॉस्पिटल हायर्ड मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स यानी कि एमबीएस, जो कि बड़े बड़े एमएनसीज में ऑपरेटिंग ऑफिसर्स, एग्जीक्यूटिव, सुपरवाइजर्स ऐसे काम करते हैं, ये लोग बकायदा डॉक्टर्स के इन टारगेट्स का ट्रैक रखते हैं। एंड ऑफ कोर्स यहां पर डॉक्टर्स भी उतने ही डेडिकेशन के साथ ये टारगेट्स को पूरा करते हैं, क्योंकि जैसे हमने देखा उनकी सैलरी बहुत ही हाई होती है, लेकिन उनका ये हाई पेइंग जॉब मोस्टली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर होता है। एंड सो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कराने के लिए और उनका न्यू पे स्केल डिसाइड करने के लिए उनके पिछले साल के टारगेट्स को देखा जाता है, जो अनफॉर्चुनेटली इन डॉक्टर्स को फोर्स कर देता है इलीगल स्कैम्स तक करने के लिए। नाउ मेडिकल फील्ड के इलीगल प्रैक्टिसेस को थरली समझने के लिए हमने ये सारा इंफॉर्मेशन 2 काफी प्रोमिनेंट डॉक्टर से लिया है। पहला है पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण अवॉर्डी डॉक्टर बीएम हेगड़े, जो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, उस आर्टिकल का रेफरेंस है। और दूसरा रेफरेंस हमने लिया है एक बुक से कॉल्ड डिसेंडिंग डायग्नोसिस बाय डॉक्टर अरुण गाडरे एंड डॉक्टर अभय शुक्ला। लेकिन काफी ढूंढने के बावजूद भी हमें ये बुक ऐसे पब्लिकली अवेलेबल नहीं मिली, लेकिन हमें बिजनेस इनसाइडर का एक आर्टिकल मिल गया जिसमें उस बुक के कुछ मेन एक्सर्प्ट्स अवेलेबल है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्कैम, जो इतना घिनौना है कि इंसानियत भी काइंड ऑफ शर्मा जाए, कीपिंग डेड पेशेंट्स अलाइव। टाइम्स ऑफ इंडिया ने ऐसे कई सारे केसेस पर एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें डॉक्टर्स डेड पेशेंट्स को भी जिंदा बताकर उनके ट्रीटमेंट्स चालू रखते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाए जा सके, और फिर अंत में जाकर सच्चाई पब्लिक करते हैं। टीओआई में ही पब्लिश्ड एक केस में एक हॉस्पिटल ने पेरेंट्स को बिना बताए उनके 14 साल के ब्रेन डेड बच्चे को 1 महीने तक वेंटिलेटर पर रखा। सो 1 महीने तक जो बच्चा मर चुका था उसे जिंदा बताया गया और वेंटिलेटर पर रखा, खर्चा जनरेट किया। बाद में हॉस्पिटल गिल्टी प्रूव भी हुआ एंड उनकी फैमिली को 5 लाख रुपए कॉम्पेंसेशन के लिए दिए। अब 5 लाख रुपए मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन तो हॉस्पिटल को देने पड़े, बट ये आप और मैं भी जानते हैं कि उस वक्त पेरेंट्स ने जब ये बात सुनी होगी, जब ये सच्चाई उन्हें पता चली होगी, तो उन पर क्या बीती होगी। Yeah. So I don't need to again play it. Yeah, डॉक्टर साहब, आपके comments, then let's go back to ये your. किताब मेरे पास है, जो इनको नहीं मिला, ये ah, गार्डियन शुक्ला का किताब डिसेंटिंग डायग्नोसिस मेरे पास है। एक बार मैं फुल स्क्रीन बताता हूँ, एक बार बताइए सर।
हाँ, ये किताब मेरे पास है। एक बार ये बताइए, मैंने खरीद कंसेंटिंग ये डायग्नोसिस, दिख वंडरफुल। तो हाँ, ये मेरे ये को भी दिख रहा चाहिए। है। ये मिल जाएगा, अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से मिल जाएगा। थोड़ा ऊपर कीजिए सर, और एक ऊपर थोड़ा। या वंडरफुल। सो दिस इज द बुक रेफरेंस, दैट वीडियो। एक ये है और एक डेक्स आप, बिकॉज वी ऑलवेज गो बाई। सो नो योर कमेंट सर। वंडरफुल। और दूसरा, ये बीएमजे का आर्टिकल है, वो जो वंडरफुल। बता रहे थे, तो ये पूरा जो उन्होंने तकरीबन पूरा ही बता दिया है। और अभी सबसे रिसेंट उनका उदाहरण हम दे सकते हैं। उदाहरण में अभी आपने पेपर में पढ़ा होगा, इकोनॉमिक टाइम्स में आया पिछले हफ्ते या 2 दिन 4 दिन पहले, कि ये गुजरात का कोई प्राइवेट हॉस्पिटल ने कोई मेडिकल कैंप किया था कोई विलेज में। वहाँ पे 19 लोगों को बोला कि आपको हार्ट का जांच करना है, और उनको अपने अस्पताल में ले गए। 19 के 19 को एंजियोग्राफी कराया, हम्म। जिसका बाद में उनमें से 7 को बोला कि आपको एंजियोप्लास्टी करना है, स्टेंट लगाना है। और वो 7 को स्टेंट लगाने के बाद 2 का देहांत हो गया, 2 लोगों का देहांत हो गया। और उसमें बाद में जो सेक्रेटरी हेल्थ सेक्रेटरी गुजरात का, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर का द्विवेदी जी है, उन्होंने कहा कि वो ऑपरेशन की जरूरत भी नहीं थी। तो हम्म। ऐसा अभी हाल ही में हुआ, 4 दिन पहले हुआ। मेरे स्लाइड में उसका रेफरेंस है। भाई वही मैं तो आपके ये साइड साइड ही बता रहा हूँ मैं आपका। वो टारगेट टारगेट दिया है, एक्चुअली टारगेट दिया है। क्या करोगे अभी? उनको नौकरी भी देखिए। अभी इतना पैसा खर्चा करके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 1 करोड़ लग जाता है एमबीबीएस करने में 5 साल में। अब उसको अभी उसको नौकरी चाहिए, कॉर्पोरेट अस्पताल में नौकरी मिलता है, क्योंकि आजकल मेडिकल टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है कि अफोर्ड नहीं कर सकता। प्राइवेट प्रैक्टिस है, इक्विपमेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते, सस्टेन नहीं कर सकते, तो वो कॉर्पोरेट अस्पताल में ही। ये गुजरात ट्रेजेडी है। यही आप ये बता रहे इकोनॉमिक। हाँ। हैं। ये बताए, और एक बार रूरल बताइए सर क्या हुआ। ये गुजरात में एक रूरल कैंप किया एक कॉर्पोरेट अस्पताल ने। 19 विलेजर को लिया अंडर आयुष्मान भारत स्कीम। ये आयुष्मान भारत भी बहुत ही अजीब गरीब स्कीम है, क्योंकि आयुष्मान भारत में आधे अस्पताल कॉर्पोरेट अस्पताल इम्पैनल्ड है। तो इसमें अगर आप गरीब लोगों को, बिलो पॉवर्टी लाइन को कैच किया जाता है, जैसे मछली पकड़ने जाते हैं ये प्राइवेट कॉर्पोरेट अस्पताल। क्या है, गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है, उनको फिर कोई ट्रीटमेंट, इन्वेस्टिगेशन, सर्जरी भी कर दिया, इंटरवेंशन कर दिया। और पैसा क्या होता है, आयुष्मान भारत स्कीम से मिलता है, बीमा से। वो हमारा पब्लिक मनी है, टैक्स पेयर मनी से corporate. So instead of increasing the number of government hospitals as per the recommendation of Bhor committee, उन्होंने क्या किया, अभी सब कुछ इन्होंने एक प्रकार से, एक इंश्योरेंस कंपनी भी आ गया। इंश्योरेंस कैंप तो पूरे वर्ल्ड में होते हैं। और क्या है कि इंश्योरेंस से पैसा जाता है अननेसेसरी प्रोसीजर, अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन, अननेसेसरी सर्जरी। गरीब आदमी भी सोचता है कि चलो हमको बड़ा हाई एंड ट्रीटमेंट मिल रहा है बड़े अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में, पैसा उसको देना नहीं पड़ रहा है। पर उसका क्या है, उसके बॉडी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जस्ट टू इंक्रीज द बिल। अननेसेसरी सर्जरी हो रहा है। और ये क्या है, टारगेट दिया जाता है। जो डॉक्टर बेचारा कर रहा है, एक बायस आ जाता है, जरूरी नहीं, उनको लगता है कि हाँ भाई इसको सर्जरी चाहिए। अभी आप नाई के पास जाओगे, बोलेगा हाँ आपको हेयर कट चाहिए। तो एक साइकोलॉजिकल आ जाता है सर्वाइवल के लिए कि भाई वो उसको नहीं करेगा तो उसका टारगेट पूरा नहीं होगा। तो they और they अगर force हम, him. They work on their minds that you need a surgery. You come and तो join. ये और आप यहाँ ड्रग इंश्योरेंस ट्रायल्स की स्कीम भी एक जैसे, बड़ी होती ना सब, इवन ड्रग ट्रायल्स आल्सो टेक्स प्लेस इन ए बिग वे। ये तो आयुष्मान भारत से क्या हो रहा है कि कॉर्पोरेट अस्पताल को एम्पैनल है पुअर। और इसमें क्या है, वो बिल दे दिया जाता है और वो आयुष्मान भारत से बिल जाता है। तो 7 को एंजियोप्लास्टी किया और 7 में से 2 का देहांत हो गया। लेटर पता चला कि इनको जरूरत ही नहीं था, डिड नॉट नीड एंजियोप्लास्टी। ये स्टेटमेंट है आपका स्टेट का हेल्थ सेक्रेटरी का। तो ये एक्चुअली ये अभी ये तो पता चला हमको। ऐसे कई हो रहे होंगे। ये तो बेचारा अनफॉर्चुनेटली 2 लोगों का डेथ हो गया। कई लोगों का डेथ नहीं होता होगा, उनको लगता होगा चलो हमारा इलाज हो गया, बट दैट सर्जरी वाज नॉट रिक्वायर्ड। तो हमारा पब्लिक टैक्स पेयर का पैसा जा रहा। अगर हम ये सब आयुष्मान भारत वगैरह, अभी इसका ऑडिटर जनरल का भी रिपोर्ट है, इसमें काफ़ी ऐसे करप्शंस होते हैं, ऐसे इसमें तो फॉल्स उसका बिल्स एक होते एक, हैं। एक और एक्सक्लूसिव लेंगे हम, क्योंकि आयुष्मान भारत बोल के अब महाराष्ट्र में भी जो इलेक्शन चल रहे हैं, आप पूछना चाहिए लोग। तो इसका एक एक्सक्लूसिव शो करेंगे हम, आयुष्मान भारत क्या हो रहा वहां पर, ये ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट लेके। लेकिन ये गुजरात हेल्थ मिनिस्ट्री डिनाई किया, दे सर्जरीज वर नॉट नीडेड एंड द हाँ, एंजियोप्लास्टी वाज नॉट नीडेड टू हैव डाइड। इट्स ओन योर हाँ, स्टेट, मिस्टर अमित शाह एंड मोदी। देन व्हाई यू हैव नॉट ऑर्डर्ड ए हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन to expose Ayushman Bharat and immune insurance companies
the dirty game which they are playing. So people should understand you don't need a surgery, but unnecessarily they are doing surgery to take away the money from Ayushman Bharat. It is our money, taxpayers' money. This is how corporate hospitals are looting. Instead of increasing, मिडिल मैन होते हैं, yeah, बोलिए सर. मिडिल मैन, इसमें मिडिल मैन होते हैं, एजेंट होते हैं। जैसे आरटीओ ऑफिस में पहले एजेंट होते थे, ऐसे ये ले आते, पेशेंट ले आते हैं, इनको इंसेंटिव मिलता है, ऐसा चलता है। तो एजेंट, तो मैं फर्स्ट इस स्लाइड से आता हूं आपका. या सर बोलिए. तो ये ऐसे मैंने पहले ही बताया कि लैंडस्केप पहले क्या था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते थे और प्राइवेट प्रैक्टिस होते थे, डॉक्टर के पास पूरा ऑटोनॉमी होता था। अभी क्या है कि एक तो टेक्नोलॉजी बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स बढ़ गए, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हुआ, फिर अभी पूरे प्राइवेट क्लिनिक, पॉलीक्लिनिक हुए, और अभी सीधा कॉर्पोरेट अस्पताल हो गया। और कॉर्पोरेट अस्पताल बहुत बड़े पैसे वाले ही उसको फंड करते हैं, और उसको मैनेजमेंट भी उनके हाथ में रहता है। और जैसे कि फिर इंश्योरेंस स्कीम भी आ गया, और इंश्योरेंस क्या है कि प्राइवेट एम्पानल हॉस्पिटल को फेवर करते हैं, और वो मिसयूज करते हैं प्रॉफिट के लिए। और अब इंश्योरेंस, एक तो आयुष्मान भारत है, गवर्नमेंट इंश्योरेंस है, इसके बाद क्या है, कई हमारे प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को इंश्योरेंस देते हैं। तो ये एक प्रकार से एक प्रकार से ये बन जाता है नेटवर्क। फिर आयुष्मान भारत स्कीम रिसेंट है, इन्होंने, इसके पहले भी राजीव गांधी था, उसमें भी स्कैम्स होते थे। क्योंकि इसमें क्या है कि गरीब आदमी को, बेचारे को कोई हेल्थ सर्विस नहीं है। हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर आपने नेग्लेक्ट किया, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर नेग्लेक्ट किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो बेचारा शहर की तरफ भागता है, और शहर में उसको ऐसे अस्पताल में आयुष्मान भारत से उनको ट्रीटमेंट मिल जाता है। और गांव में भी है, पर इतने अच्छे अस्पताल नहीं है। आपको तो मालूम है कि एक डॉक्टर नहीं मिलता, और हमारे 70% 60% पॉपुलेशन हमारे विलेजेस है, उनको ही बीमारियां ज़्यादा है। और अर्बन एरिया में तो वेल टू डू को अपना लाइफस्टाइल डिजीज है, उसके लिए भी अस्पताल जाते हैं। तो ये लैंडस्केप चेंज हो गया, गवर्नमेंट से प्राइवेट हो गया, और प्राइवेट से तो इंश्योरेंस आ गया। और अगला स्लाइड बताइए, नेक्स्ट स्लाइड। तो ये सब मालूम है हमको, ये इनके ये पेपर से हमने लिया है, जो बीएमजे में पेपर डॉक्टर शुक्ला ने पब्लिश किया है, और भी ऑथर्स है। डाइवर्स प्राइवेट हेल्थ केयर, पुअर डॉक्यूमेंटेशन एंड स्ट्रक्चरल चेंज एंड प्रैक्टिस, उनके ऊपर कोई आपका ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, क्या डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, क्या डायग्नोसिस कर रहे हैं। लैब्स भी बढ़ गए, उनको भी। फिर आपका इंक्रीजिंग कॉर्पोरेट हॉस्पिटल कंसर्न्स के रेफरल प्रैक्टिसेस, कट प्रैक्टिस है, आप प्राइवेट प्रैक्टिस से भी रिफर करता है, उसको कट मिलता है। जितना वो इन्वेस्टिगेशन जो कि शायद ज़रूरत नहीं भी हो, उसके लिए उसको कट मिलेगा। ओवर इन्वेस्टिगेशन होते हैं, और बड़े बड़े कॉर्पोरेट जहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनको पैकेजेस दिया जाता है, स्क्रीनिंग, एनुअल हेल्थ चेकअप, और उसमें क्या है, 20 इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उनमें से एक टेस्ट भी एबनॉर्मल, जो कि इन्वेस्टिगेशन का स्टैटिस्टिक्स बताता है कि अगर आप 20 टेस्ट करोगे तो एक हेल्दी पर्सन में भी एक टेस्ट एबनॉर्मल आ सकता है। एक टेस्ट एबनॉर्मल आएगा तो उसके फिर वो 50 टेस्ट और करने पड़ेंगे, कई बार प्रोसीजर भी हो जाता है जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। सो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ग्रेजुअली अभी, फिर अभी उसमें क्या होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप भी चेंज हो गया, और डॉक्टर्स के पास कोई अपना खुद का ये नहीं है डिसीजन लेने का। और मेडिसिन को जो कि एक कॉलिंग होता था, अभी बिजनेस हो गया। वो परफॉर्मेंस टारगेट, कितना टारगेट किया। अर्ली कैरियर डॉक्टर्स जो नए नए जा रहे हैं, उनका पूरा एक प्रकार से एक रास्ता ले लेते हैं, उससे वो निकल भी नहीं सकते, वो ऐसे इसमें पड़ जाते हैं। तो इसमें कॉस्ट बढ़ रहा है हेल्थ केयर का, अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन का, साइड इफेक्ट्स बढ़ रहे हैं, मेल प्रैक्टिस हो रहा है, जैसे अभी गुजरात में हुआ। और डॉक्टर पेशेंट के ऊपर ट्रस्ट चला जा रहा है। अभी रिसेंटली हर दिन आता है कोई ना कोई डॉक्टर का पिटाई हो जाता है बाई पेशेंट, बट डॉक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल हियर, मजबूर है बेचारा वो, आफ्टर ऑल क्या करेगा वो। वायलेंस भी बढ़ रहा है। तो अब वो, या तो फिर ये मेडिसिन आएगा ही नहीं, कोई मेडिसिन में अच्छे लोग नहीं आएंगे। यही चाहते तो हैं ना. इंश्योरेंस भी कॉर्पोरेट को देता है, इलिटरेट पीपल, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। या और आगे कुछ है स्लाइड इसके, हाँ, गुजरात ट्रेजेडी भी हमने, इसके बारे में भी ये हो गया बातचीत। तो गवर्नमेंट कैसा है, इसका क्या सोल्यूशन क्या है कि गवर्नमेंट एंड प्रोफेशनल बॉडीज, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड एनएमसी, पहले वो एमसीआई था, अभी नेशनल मेडिकल कमीशन है, उसको ध्यान देना चाहिए कि ये हो क्या रहा है।
और इसमें कॉस्ट कितना लग रहा है, ट्रस्ट और मैल प्रैक्टिस कितना हो रहा है। एंड इसमें इनको यह है कि शॉर्टकट नहीं है कि गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ेगा पब्लिक हॉस्पिटल हेल्थ सेंटर में। प्राइवेटाइजेशन में इट इज टेक ओवर बाय कॉरपोरेट, तो वो नहीं चलेगा। उससे क्या होगा, मैल प्रैक्टिस बढ़ता रहेगा, कमेगा नहीं। और नेक्स्ट है क्या, और स्लाइड है? हम बता रहा हूँ, और एक है। तकरीबन हमने कवर, हाँ। पब्लिक मनी साइफन हो रहा है इंश्योरेंस के द्वारा कॉर्पोरेट अस्पताल को। कुछ कुछ जरूरी होंगे मानता हूं मैं, पर कई अभी जैसे बताया कि कई चीजें जो कि एक्स्ट्रा किया जा रहा है, फिर नेग्लेक्ट और पब्लिक हेल्थ तो और नेग्लेक्ट हो रहा है, और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं। और सब कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल के वर्किंग कंडीशन इतने खराब है कि लोग गवर्नमेंट नौकरी छोड़ के प्राइवेट में चले आ रहे हैं सीनियर लेवल में, क्योंकि वहाँ पे उनको ज़्यादा ये मिलता है। तो अभी बोर्ड कमेटी हो गया, 17 इतने साल हो गए, 80 साल हो रहे इंडिपेंडेंस के, अभी भी हमारा हेल्थ का कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ, और ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, पैसा खर्चा हो रहा है। सो यही हम कहेंगे। अगला में मैंने दिए होंगे रेफरेंसेस, हाँ ये तो यही पेपर है, या ये जो आप बता रही है मेरे पास है। और मैंने आयुष्मान भारत पे भी एक आर्टिकल लिखा है, उसका भी रेफरेंस दिया है। डॉक्टर रेड्डी बोलेंगे तो उसमें भी कभी कर सकते हैं। और करेंगे उसका। प्रोग्राम, अगला शो नेक्स्ट वही करेंगे हम, आयुष्मान का, आप जो लिख और रहे हैं। पीएम बेनिफिट, अब ये इसका ये मैंने रेफरेंस दिया है जो इकोनॉमिक टाइम्स में आया है। ये अभी आप देखो, इसका अभी 2 दिन पहले का ही है ये। गुजरात गवर्नमेंट ऑर्डर्स प्रो, जांच चल रहा है, रेड्डी साहब ने जैसे बोला जांच चल रहा है, पर जांच तो चलता रहता है। अभी जांच, अभी जे हॉस्पिटल में जांच हुआ था 1986 में, 14 पेशेंट मर गए थे। तो अभी 40 साल हो गए, अभी तक वो कोर्ट में केस चल रहा है। अभी उसमें से 2 जो एक्यूज थे वो मर गए हैं, और बाकी एक्यूज 70 साल और 90 साल के बीच में उनका एज है। कोर्ट में केसेस ऐसे ही चलते रहते हैं। जो जे जस्टिस बख्तावर लेंटिन का है, आप नेट में सर्च कर सकते हैं। ये तो कॉर्पोरेट अस्पताल नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डेथ हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट है, वहाँ से ड्रग आता है, सब स्टैंडर्ड ड्रग था, उसमें डाइथाइल ग्लाइकॉल था। अभी भी वैसे केसेस हो रहे हैं। गाम्बिया में डेथ हो गया कफ सिरप से, वो 1986 में जो जस्टिस लेंटिन रिपोर्ट था, इंक्वायरी हुआ था, उसका अभी भी जो लोग इसके लिए जिम्मेदार थे वो अभी भी बाहर घूम रहे हैं। और तो 2 लोग तो ऐसा डेथ डॉक्टर हुई है। साहब, ये एक हाँ। क्वेश्चन है आपसे। ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो भी होता है उसके ऊपर इंक्वायरी होता है और रिपोर्ट आता है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फार्मेसीज हो या टेस्ट हो या सही तरीके से वहां पर देखभाल ना हो, इस तरह की डेथ्स होती है कॉम्प्लिकेशंस के साथ, तो इसके ऊपर रिपोर्ट हो रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। क्यों प्राइवेट या कारपोरेट हॉस्पिटल से आज तक मैं कहीं नहीं सुना इसके ऊपर जांच हुई है, या इसके ऊपर कोई नष्ट परिहार बोल के आता है, डैमेजेस, जैसे दे आर क्लेमिंग डैमेजेस, वी हैव गिवन डैमेजेस, हाउ ट्रू इट इज, वी आर नॉट seeing anything. So is there any regulatory or supervisory authority over private and corporate hospitals when Ayushman Bharat, नहीं public money is being रहने spent? होते हैं, बीच बीच में आते हैं, प्राइवेट अस्पताल वाले भी कंपनसेशन देते हैं। और इसमें क्या है कि प्राइवेट जो कॉर्पोरेट अस्पताल में जो डॉक्टर्स काम करते हैं उनको भी इंश्योरेंस रहता है। वो इन लोग इंश्योर कर लेते हैं कि अगर कोई कंपनसेशन देना हो तो फिर वो उनका कंपनसेशन भी इंश्योरेंस वाला देता है। आप समझ रहे हैं ना? अरे मैं तो समझ गया हूँ, उसका भी लेकिन इंश्योरेंस होता है। लेकिन हम जो है गवर्नमेंट की जब बात आती है, गवर्नमेंट डॉक्टर्स को डराते हैं, नर्सेस को डराते हैं, फोर्थ ग्रेड स्टाफ को डराते हैं, और वहां पर हर किसी को गवर्नमेंट जब जॉब है उनको डराते हैं। उस तरह की क्रेडिबिलिटी या उस तरह की रेगुलेटरी अथॉरिटी प्राइवेट या कारपोरेट हॉस्पिटल में जो काम करते हैं, डॉक्टर्स हो या कोई हो, उसका एमडी हो, चेयरमैन हो, उसके ऊपर क्यों नहीं होता? क्योंकि हॉस्पिटल्स जो है होता है। बिल्डिंग हो गए आजकल, होटल्स तो लास्ट चले गए। इसीलिए आई वाज अपीलिंग टू टूरिज्म सेक्रेटरीज, डोंट अलाउ द वर्ड कॉल्ड हेल्थ टूरिज्म, एंड डोंट अलाउ हॉस्पिटल होटल्स टू बी कन्वर्टेड इनटू कारपोरेट हॉस्पिटल्स। इस तरह कोई वहां पर एक अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं ना सर। जिस तरह गवर्नमेंट डॉक्टर्स और सुपरिटेंडेंट जो हॉस्पिटल के जो रन करते हैं, वहां पर क्यों नहीं है? देखिए I have not केसेस तो seen बहुत I have होते not हैं। seen chairman or MD of any private hospital being jailed other than doctors if they are running these hospitals. Yeah. वो बताएंगे कि वो डॉक्टर ने, साइन तो डॉक्टर करता है, बिकॉज वो तो बोलेगा हमने तो वर्बल देते हैं ना, इनडायरेक्ट देते हैं कि आपको इतना टारगेट है, लिखित में नहीं देते हैं।
इट इज इम्प्लाइड। नंबर वन। नंबर टू है कि अभी कोर्ट केसेस देखिए गवर्नमेंट में भी क्या हो रहा है, आरजे कार का मर्डर हो गया, ये हो गया, अभी तक चल रहा है, अभी पता तक नहीं चल रहा कितने है। दिन सुप्रीम चलेगा। कोर्ट, आफ्टर हाँ, सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व, तो आज ऐसा तक कुछ कुछ नहीं हो नहीं रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट, बल्कि उल्टा है, बल्कि गवर्नमेंट में डॉक्टर को आप कुछ नहीं कर सकते, उसका जॉब सिक्योर है। है। प्राइवेट में डॉक्टर्स का जॉब इनसिक्योर है, क्योंकि वो टारगेट नहीं मीट करेगा तो उसको ये चलेगा। तो दोनों एक्सट्रीम है। और कुछ गवर्नमेंट डॉक्टर्स है वो बड़े डेडिकेटेड है, कुछ प्राइवेट डॉक्टर्स है, हम कहेंगे 80% प्राइवेट डॉक्टर्स डेडिकेटेड है, डेडिकेटेड 80% गवर्नमेंट। पर जो 10% 20% उससे पूरा डॉक्टर कम्युनिटी बदनाम हो जाता है, है। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाता है। Right. What is the last word for to the government and to the patients also? गवर्नमेंट एंड पेशेंट को ऐसा है कि पेशेंट एज वेल एज पीपल रादर, क्योंकि ऑल Yeah. पीपल हेल्थ मेन है कि वी शुड टेल द गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट इन पब्लिक हेल्थ। दो चीज को गवर्नमेंट प्राइवेट को मिनिमम होना चाहिए, दैट इज हेल्थ एंड एजुकेशन। इसी के बाकी सब प्राइवेटाइज कर दे बेशक, पर हेल्थ और एजुकेशन शुड बी। बिकॉज इसमें क्या होता है कि एक तो ये बहुत खर्चा वाला है। हम आई डोंट ब्लेम द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स ऑल्सो, आई डोंट ब्लेम द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, बिकॉज कॉलेजेस जो चलाने के लिए आजकल मेडिकल इक्विपमेंट्स इतने कॉस्टली हो गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कॉस्टली हो गया, आपको पेशेंट्स रखने पड़ते हैं, उनको खाना के लिए खर्चा, उनको नर्सिंग के लिए खर्चा, बहुत स्टाफ लगता है। तो रनिंग अ हॉस्पिटल इज वेरी वेरी एक्सटेंसिव, कॉस्ट इंटेंसिव। तो अगर गवर्नमेंट इन्वेस्ट नहीं करेगा तो फिर वो उनको खर्चा करेंगे तो वो खर्चा रिकवर करने का उनको करना पड़ता है, वो उनके पास भी एक प्रकार से मजबूरी है। तो Right. बेस्ट इज टू हैव द इन्वेस्टमेंट, लोगों को बोल के कि भाई हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप इन्वेस्ट करो। और उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल शुड नॉट बी ओनली इन दी बिग टाउन्स एंड बिग सिटीज। अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी आप सिटी में खोल रहे हो, प्राइवेट वाला तो सिटी में खोल रहा है, गवर्नमेंट वाला भी अभी सिटी में चार और गवर्नमेंट कॉलेज पूना में आ रहा है। अरे इट शुड कम इन द रूरल एरिया, रिमोट एरिया, जहाँ पे पेशेंट्स है। और वहाँ पे भी नेग्लेक्ट किया आपने, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर्स जाना नहीं चाहते, Right. क्योंकि वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड्स नहीं है, एजुकेशन नहीं है बच्चे का। तो यू हैव टू डेवलप द कंट्री इक्विटेबली। तो उधर आप अच्छे स्कूल्स करो, अच्छे सर्विसेज दो, अच्छे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स करो, रोड्स करो। तो इट इज नॉट ओनली इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ, यू हैव टू इन्वेस्ट इन द होल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, क्योंकि Yeah. हेल्थ में ट्रांसपोर्ट चाहिए आपको, पेशेंट Public को, transport. सीरियस पेशेंट और को यहाँ एवैक्यूएट पर भी करना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगेन प्राइवेट नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही। हाँ हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। कुछ पब्लिक तो है ना, ट्रांसपोर्ट, रोड कर दे। पब्लिक हेल्थ। अरे या रोड अभी, रोड तो पब्लिक ही है, रोड प्राइवेट नहीं। तो रोड होगा तो प्राइवेट गाड़ी भी चले, ठीक है, पर वो लोग जाएंगे वहां पे। राइट। अभी देखिए आप एक जगह कर रहे हैं, दिल्ली में सब पोल्यूशन हो रहा है, अभी बोल रहे हैं स्कूल भी बंद। तो एक जगह में कितना नुकसान हो रहा है। तो गांधी जी ने बहुत पहले बोला था कि द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया शुड बी विलेज सेंट्रिक। तो वो बिल्कुल हम ऑपोजिट जा रहे हैं, तो विलेज से और माइग्रेशन हो रहे हैं। तो गांव डेवलप ये है। कीजिए, गांव को पहले प्रगति मार्ग